Abbas Tayarwala, thank you so much for joining me on eTime. It's lovely seeing you. I think we spoke last a long time ago, and it's so good to see that you are associated with this movie Pathan, which is the talk of the town. Talk of the town is a modest word, and you have written it. You have written the dialogues. Let me ask you first and foremost that what exactly are you feeling? Did you expect this kind of euphoria? Because you've written so many movies before, and I don't think there has been so much of excitement ever before in your filmography. Though your films have really shot over the roof. I mean, Maqbool, Beat, Munna Bhai, MBBS, and several others. What exactly are you feeling at this moment? Yeah, Vicky, quite honestly, because I had written the dialogue of war with Siddharth, and I had seen the degree to which that film was also successful. Surprised if it hadn't done well, to be very honest, right? And it's not vanity at all. I'm just glad to be associated with the project. I just did my job, right? But the project had winner written all over it. But when it was conceived and when it was written, your pandemics hadn't happened. The whole psyche of the film watching viewer hadn't seemed to have changed yet, right? Something happened where the whole industry has been wondering, do people even want to watch movies anymore? And will they ever watch it with the fervor that you're referring to ever again? So to see that after, because that is the only thing that created the doubt. In the pre-COVID times when every film was taking an opening, I had no doubts that had made a blockbuster. But after everything that had happened and the number of Hindi films that were not getting a response, there was a slight concern. Have people gotten out of the habit of and the joy of watching films on screen? Is OTT just too convenient? And to see people dancing in the halls again, I've got multiple videos to see people recording the song playing on screen. That's something pretty unusual. And yes, it's a bit of a kick. I guess I would have been able to enjoy it a bit more if I was there in the middle of it all rather than tucked away in my little place in Goa with cats for company. But it still feels very good, and it means a lot to people who have been waiting for me to do something again that they can point to and say, "Hey, there's some great work," because I've been a bit quiet, and the response to my work, including my choice of work, has not been very in your face. So they're just family and friends are very happy that there's something that is again, as you said, the talk of the town. So, of course, the question that is looming large with your last few sentences is that why haven't you directed a film since a very long time? But before that, you said that there was apprehension in not so many words, but in the middle के ऐसी पिक्चरें लोग देखने आएंगे या पिक्चरें भी देखने लोग आना चाह रहे हैं कि नहीं? Was there any discussion on that between you and Siddharth Anand, the director? Siddharth Anand and I have a very unique relationship. Um, we we are not buddies. We don't go out for dinners, and between movies, I don't think we ever chat except once in a way, checking if the family's okay. How are you doing, bro? Are your children fine? Utna. हम सिर्फ जिस दौरान डायलॉग्स लिखने होते हैं उस वक्त वो जो 3 4 6 महीने का प्रोसेस जो भी होता है उसमें बहुत इंटेंसली इंटरेक्ट करते हैं सो वी ऑलवेज पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ ऑन द लास्ट फिल्म राइट और जिस दिन डायलॉग पे सिद्धार्थ का और आदि का साइन ऑफ हो जाता है और ये दोनों बहुत ही कंसिस्टेंट लोग हैं तो एक बार जब उनको कुछ पसंद आया तो वो why I enjoy working with Siddharth and Adi in particular is they are extremely convinced about what they like and what they believe in. So once they have said, उसके बाद हम सीधा अगली फिल्म पे बात करते हैं, right? तो जैसे अब ये जब फिल्म रिलीज पे आती है तो जो जितना एक दूसरे को मुबारकबाद देनी होती है, congratulations, break a leg, all the best, you know, the sort of best wishes for each other, वो होता है. And now I'll wait for whenever we are gonna work again. तो ये सारे जो सोशल डिस्कशंस है वो एक्चुअली हमारी दोस्ती वैसे है नहीं हमारी बहुत ही एक वर्क बेस्ड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है लेकिन हाँ जब वो पहले एक जो ये बेशर्म रंग और वो सब कंट्रोवर्सी जब शुरू हुई थी जो किसी के जहन में भी नहीं था क्योंकि 8 रंग है पूरे गाने में एक्सेट्रा
तो वहां जब ये शुरू हुआ था और तब दौर ही ऐसा चला था कि ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं कुछ फिल्मों को और कुछ इंडिविजुअल्स को, तो वहां मुझे थोड़ी थोड़ी मुझे चिंता हुई थी। मैंने सिद्धार्थ को पूछा कि हमें इससे फर्क पड़ेगा कि ऐसे कोई दिक्कत होगी? उसने कहा फिलहाल तो नहीं लग रहा, फिलहाल लगता है कि इट विल काम डाउन, इट्स अ फ्लैश इन द पैन। So I'm very glad that he was right about that because nothing stopped the people from coming to the theaters and enjoying the film. So what was the brief given to you for Pathan? And also here, I want to add a question. Do you write according to the hero that has been cast? There must have been occasions where the person has not been cast. I mean, a large part of the cast, or maybe even the hero or the heroine. What happens in those cases, and how was it here? Okay, from very early on, as you know, that the last few years I've not really tried to project myself too much in the media or tried to be in the media eye. I kind of outgrew that. I was lucky enough that by God's grace, as much work that I needed to keep myself happy was coming my way. So I wasn't going out of the way to be in the public eye. I've been slightly reclusive. So, that's why I haven't given interviews and all for a long time. But if you look at even from very early days, from my first few films with Rajkumar Hirani, Farah, Vishal ji, everyone, तो तब से मैंने हमेशा ये कहा है कि आई एम अ डायरेक्टर राइटर। मैं आपकी फिल्म के साथ तब जुड़ूंगा जब आप अपनी विजन पे बिल्कुल क्लियर हो, आपकी विजन अपने लिए बिल्कुल क्लियर है और हर डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल क्लियर है। बिकॉज एक राइटर, अगर मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, अगर मेरी कहानी नहीं है, तो मैं कोई उसके लिए अगर इंडिपेंडेंट विजन ढूंढने की कोशिश करता हूं, तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर के विजन के सिंक में हो। तो मेरे लिए मैं और इसीलिए मैं अभी भी आज तक बहुत बहुत कम काम करता हूं, क्योंकि बहुत सारी बढ़िया फिल्में मुझे प्रेजेंट होती है, लेकिन मुझे पता चलता है कि वो डायरेक्टर अभी भी एक डिस्कवरी के प्रोसेस पर है। आपको पता है कि चलो ये बैनर है, ये डायरेक्टर है, ये स्टार है, फिल्म हिट होनी है, लेकिन अभी मुझे पेपर पे नजर नहीं आ रहा है कि ये क्या होने वाली है। राइट, तो एक दो बहुत बड़ी फिल्म है जो बाद में जाके ब्लॉकबस्टर्स हुई है, आज तक लोगों को याद है। लेकिन जब मेरे पास आई थी कि क्या तुम डायलॉग करोगे, तो वहां पे डायरेक्टर खुद एक डिस्कवरी के जर्नी में था। राइट, तो वो आ, वो प्रोसेस मेरे लिए ये है कि डायरेक्टर क्या करना चाहता है और क्या मैं उससे अग्री करता हूँ। और जो वाकई जो मुकम्मल डायरेक्टर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स होते हैं, वो ये भी समझ जाते हैं कि जब आप अपना स्क्रीन प्ले या अपनी कहानी पेपर पे डाल चुके हो, अब आपने क्या सोचा था वो आपकी ब्रीफ नहीं हो सकती है। वो डिस्कशन होगा, लेकिन जो आप लिख चुके हो ना, जो वाकई एक अच्छा, जैसे अगर एक अच्छा सिनेमाटोग्राफर है, तो वो स्क्रीन प्ले पढ़ के उसको एक, वो स्क्रीन प्ले ही गाइड करेगा कि शॉट्स कैसे होने चाहिए, किस तरह की लेंसिंग होनी चाहिए, किस तरह की लाइटिंग होनी चाहिए। इसमें आपको हैप्पी ग्लैमरस ग्लो वाली लाइटिंग चाहिए, क्योंकि ये एक धर्मा की, यशराज की, साजिद नडियाडवाला की उस तरह की प्रोडक्शन है, या फिर ये अनुराग कश्यप के जोन की, दिवाकर बैनर्जी की जोन वो है, तो और उस तरह लिखी जाती है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि कौन कर रहा है, बट उनका एक तरीका होता है लिखने का। तो हर टेक्नीशियन जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है ना, वो स्क्रिप्ट उसके लिए ब्रीफ बन जाती है। जो डायरेक्टर कहता है वो एक डिस्कशन के तौर पे कहता है, लेकिन तो मेरे लिए ये है कि चलो एक स्क्रिप्ट से मुझे एक फील मिलने लगता है कि इसका साउंड और वॉइस ये होना चाहिए। अब अगर डायरेक्टर मुझे कुछ और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी हो, तो देन आई रियलाइज दैट द डायरेक्टर्स ओन विजन इज नॉट क्लियर, इट्स नॉट इन सिंक विद व्हाट he's put down on paper, so then I respectfully choose not to be associated with that project. Siddharth Anand has always been the person who has जब वो मुझे मेरे पास स्क्रीन प्ले भेजता है, तो मुझे कहानी भी पहले नहीं बताता। तो ही वांट्स द स्क्रीन प्ले टू बी द ब्रीफ, कि जब मैं लिख चुका हूँ पेपर पे, तो मैंने क्या सोचा था और मैं क्या करना चाहता था, वो बात की बात है। जो मैं लिख चुका हूँ वो फिल्म बनने वाली है, जो मैं बनाना चाहता था वो नहीं बनने वाली है। जो मैं लिख चुका हूँ वो बनने वाली है। सो ही हैज ऑलवेज ट्रीटेड द स्क्रीन प्ले एज अ ब्रीफ। तो पहले वो मुझे पढ़ने देते, उसके बाद हम डिस्कशन करते। और कभी कभी उनकी वो, और उनके जो ब्रीफ भी होते हैं वो बहुत क्लियर और बहुत ब्रॉड लेवल पे होते हैं। जैसे वॉर में हमने एक बहुत ही कहना अजीब लगता है, बिकॉज वो ऋतिक रोशन प्लेइंग सच अ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड कटरीना लुकिंग सो गॉर्जियस एंड टाइगर्स डांस, तो आप जब वॉर के बारे में सोचते हैं तो आपको एक बहुत ग्लैमरस फिल्म याद आती है। लेकिन जो उसकी जो डायलॉग बाजी थी, उसमें एक बहुत बहुत रिस्ट्रेंट था।
बहुत ही हेल्ड बैक क्वालिटी थी वॉर के, एटलीस्ट एज कमर्शियल फिल्म्स गो, राइट? हियर सिद्धार्थ वाज वेरी क्लियर दैट ही वांटेड इट मच मोर इन योर फेस देन वॉर, बिकॉज है उसी यूनिवर्स की, और फिर वही लोग बना रहे हैं और उस फिल्म के कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, तो उसको सर ही वाज वेरी क्लियर कि द लफ्फाजी एंड द ह्यूमर he wanted much more than war. He goes, जहां पे war में हमने एक वो ठहराव रखा था, here I want it in your face. I want the humor to fly to the point जहां पे कभी कभी थोड़ा फॉल्स भी हो जाए, और यहाँ पर वो आपके जो एक्टर की बात होती है कि कुछ चीजें होती है कि वो जो लॉजिक के परे होती है, कुछ चीजें ये होती है कि द लैंग्वेज इज या द जोक इज अ बिट ओवर द टॉप, या डायलॉग बाजी कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो जाती है, तो वहां पर ये सवाल आता है कि इज द एक्टर or the star more importantly, does he have the persona to carry it off? तो कुछ लाइंस है जो शाहरुख अगर आपके पास है या सलमान अगर आपके पास है, so they'll get away with it, they'll carry it off, right? और उसी जगह पे अगर कोई एक रियलिस्टिक जोन का एक्टर है या एक अलग तरह के साधन वाला एक्टर है, तो वो अजीब लगने लगता है। तो जब आप आमिर के लिए लिखते हो तो यू विल मेक श्योर दैट इट साउंड्स अ लिटिल मोर ट्रू टू लाइफ, because that is where Amir shines. He tries to create a sense of of the world, right? शाहरुख एंड सलमान सेल ड्रीम्स, तो वहां पर आप थोड़ा पुश गए, तो उस सिलसिले में ये था कि द ओनली लिबर्टी दैट वी टुक इज कि स्क्रिप्ट में जो डिमांड थी उससे ज्यादा ह्यूमर और उससे ज्यादा थोड़ी लफाजी हमने शाहरुख के स्टारडम को ध्यान में रखते हुए at some level in Hindi films you can't, देखो कहने में शायद नेगेटिव लगता है, लेकिन मुझे ये कहने में बिल्कुल ही आई डोंट थिंक राइटर छोटा हो जाता है, बिकॉज दिस इज द जॉब टू अ ग्रेट एक्सटेंट अ मूवी ऑफ दिस साइज इज सर्विसिंग द स्टारडम ऑफ द एक्टर। तो जब आप शाहरुख, ऋतिक, सलमान इनको लेके अगर आप इस स्केल की फिल्म बनाते हो, इस इतना एक्सपेंस करके जब आप फिल्म बनाते हो, a big part of the reason you are doing it is because you have confidence in the stardom of the star. अब उस स्टारडम के लिए अगर आप फ्यूल नहीं दोगे और फिर जाके अगर उनको थोड़ा वीक या ह्यूमन कर दोगे, तो फिर वो फिल्म उस स्केल की चल नहीं सकती है। तो कहीं पे एज अ कमीशन राइटर आपको वो स्टारडम को सर्विस करना पड़ता है। पर हाँ, जब वैसा नहीं है, जैसे जब जब जाने तू में लिख रहा था, जब मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उस फिल्म में कौन होने वाला था, वहां पर कहीं पर जाकर आप कैरेक्टर्स ज्यादा क्रिएट करते हो। यहाँ पे आप स्टार को सर्विस करते हो, वहां पे आप सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट को सर्विस करते हो, जो पता नहीं होता है। तो उसमें भी एक मजा है, उसमें भी एक जॉय है लिखने का, लेकिन ये भी एक तरीका है और एक एक्सपीरियंस राइटर को फर्क पता होना चाहिए। You said earlier, Abbas, that you visit the set or get into a long discussion only when an actor has a certain problem with certain lines on the set or etc. जी। Did it happen any time with you in your career? With me, no, it's not that the actor has a problem. It's I mean, it's often that the happened, that's why situation I has said it. changed. जैसे अभी अभी ये जब टाइगर की एंट्री जो अब लोगों को पता चल गया है कि सलमान खान का कैमियो है फिल्म में, तो वहां पे अब शाहरुख और सलमान की लफाजी होनी है। दोनों को बराबर तवज्जो भी देनी है। फिल्म शाहरुख की है तो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, सलमान की स्पेशल एंट्री है तो उसे शाहरुख से कम नहीं कर सकते, राइट? दोनों को इक्वल ये देते हुए ऑडियंस के लिए को ये क्रिएट करना है। अब दोनों है द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ द कंट्री, तो दोनों का अपना एक नजरिया है, और कितनी भी दोस्ती हो, कुछ भी हो, जब साथ में स्क्रीन पे आना है तो दोनों थोड़ा ध्यान रख रहे हैं कि अच्छा उसकी लाइन क्या है, मेरी लाइन क्या है, अब मैं ये बोलूँ तो what happens is that in scenes like that, the actor wants to contribute his ideas. He knows what he can do well. He knows what he can say well. सलमान will say मैं इसकी जगह पे ये लाइन अगर ऐसे बोलूं या ये जोक ऐसे बोलूं, अब मुझे पता है कि ये जोक एक थोड़ा इनसाइडर जोक है, फिल्म सर्कल वालों को समझ में आएगा, लेकिन शायद ऑडियंस को नहीं, तो उनको कन्विंस किया जाए कि देखो ये लेट्स नॉट क्रैक इंडस्ट्री जोक्स, बट कभी कभी मजा भी आता है, लोग इशारा समझ जाते हैं। जैसे इस फिल्म में अब मैं वाकई कह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको कल रात को बताया जब आपने इस इंटरव्यू की बात की कि मैंने अब तक फिल्म देखी नहीं है, जो कास्ट एंड क्रू स्क्रीनिंग हुई यशराज में, वहां पे मैं मौजूद नहीं था, और कल मुझे टिकट नहीं मिली गोवा, Yeah. तो मैं आज देख रहा हूँ इस इंटरव्यू के बाद, राइट? तो बट मुझे कुछ कुछ जैसे रेफरेंसेस है जो मुझे लोगों ने भेजे कि ये लाइन अच्छी थी, या किसी ने जो कमेंट किया है, तो मुझे पता चलता है कि हाँ है कुछ इंडस्ट्री जोक्स लिखे हुए थे, कि कोई वो इनसाइडर जोक्स, जहाँ पे जब आप एक पार्टी में बैठे
आप जानते हो आपने क्या कहा था और अपने अंदर हंस लेते हो, ऑडियंस को हर बार समझ में आए ये जरूरी नहीं है, राइट? या जैसे आप किसी शाहरुख की फिल्म है, उसमें किसी शाहरुख के पुराने फिल्म का रेफरेंस दोगे, या सलमान की किसी और फिल्म का रेफरेंस दोगे, या जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, राइट? तो जैसे आई थिंक बहुत कम फिल्में हैं शाहरुख की जहाँ पे किसी ना किसी तरह से आपके दिलवाले दुल्हनिया का रेफरेंस या ऐसा कुछ नहीं आ जाएगा। आप कहीं पे वो सेनोरिटा कह देंगे, बड़े बड़े शहरों वाली बात कह देंगे, पलट के ऊपर एक जोक, तो वो इनसाइडर जोक्स है कि आप अपनी पुरानी, राइट? तो तब ये होता है कि अच्छा, इसको बैलेंस कैसे किया जाए ताकि वो खुश भी रहे, उनको जो करना है करने भी मिले, दे एंजॉय द प्रोसेस, एंड येट इट शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टिंग जहां आप कहानी से ऑडियंस को बाहर फेंक दो। तो ऐसे कुछ कुछ डिस्कशन होते हैं। या फिर एक लोकेशन आपको नहीं मिलता है, आपने सोचा था कि हम इस तरह का, जैसे वो पूरा जो रशियन सीक्वेंस है वो एक बिल्कुल अलग सीक्वेंस होना था जो ब्रेक इन है। वो पहले लिखा गया था कि एक पहाड़ है जहां पर एक वॉल्ट है, और उस तरह का लिखा गया था, वो बिल्डिंग के टॉप पे वॉल्ट नहीं था। और फिर पूरा किसी वजह से वो लोकेशन और उसके सारे जो इम्प्लीकेशंस थे, जो लॉजिस्टिक्स थे, वो बदल गए। तो वो पूरा सीक्वेंस रीराइट करना पड़ा। तो कभी कभी ऐसी एक्सीजेंसीज होती है जिसकी वजह से आपको चीजें बदलनी पड़ती है। ये नहीं कि लोग बैठे बैठे अपना माइंड बदल देते हैं या अचानक चीजें बदलने लगते हैं सेट पे। मैं ज्यादातर उन फिल्मों के साथ एसोसिएट करने से बचता हूँ जहां पे डायरेक्टर बाउंड स्क्रिप्ट पे कमिटेड नहीं है। सो ऑल द डायरेक्टर्स आई वर्क विद, दे प्रेफर वर्किंग लाइक दैट, लॉक कर दो। What I feel from your last answer is that you were present on the set when the Salman and Shah Rukh scene was being shot to take care that everything goes correct. एक दिन के लिए, एक दिन के लिए मुझे देखो, हर एक्टर, जैसे इवन जब वॉर भी हुआ था, राइट, तो उधर भी पूरी स्क्रिप्ट अप्रूव हो गई, सिद्धार्थ को पसंद आ गई, आदि को पसंद आ गई, पूरी स्क्रिप्ट लॉक्ड है। उसके बाद भी सिद्धार्थ ने मुझे 2 दिन के लिए गोवा बुलाया कि देखो ऋतिक के कुछ सजेशंस है जो अब तक हमने फैक्टर नहीं किए, बट नाउ दैट ही इज सॉर्ट ऑफ सीन द होल स्क्रिप्ट एंड ऑल, इज तो 2 दिन जाके मैं ऋतिक के साथ भी गोवा के अंदर हम लोग रहे थे, हम लोग ने डिस्कस किया था, उनके सारे सजेशंस लिए, कुछ रखे, कुछ जितना जेंटली हो सका मैंने उनको डिस्करेज करने की कोशिश की कि आई नो इट साउंड्स लाइक फन, लेकिन ये इसलिए डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो वो एक सेशन तो हर एक्टर के साथ होता ही है, राइट? ये हो सकती है, कहीं ये हो सकती है, तो उतना इंटरेक्शन हो जाता है, इट्स गुड फन। Hmm. So in short, you were there and you made it all balanced and you took their inputs and sometimes. वन ट्राइज, अब मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कितना बैलेंस हुआ है। अच्छा, एक बात ये भी देखो कि एक पॉइंट के बाद आपके शाहरुख और सलमान और ये जो आपके एक्टर्स है ना, वो एक पॉइंट के बाद उन्होंने अगर फैसला कर लिया है कि मुझे ये लाइन ऐसे बोलनी है, आप 50 स्क्रिप्ट में लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो, वो जाके बोलेंगे, वो डायरेक्टर को करने। और एक पॉइंट के बाद आपको उनको इंडल्ज करना पड़ता है। तो मुझे भी जाके देखता है कि वो जो कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी, तो डायलॉग पर उस दायरे में रहे, या वो उनके थोड़े इनसाइडर जोक्स जो शाहरुख और सलमान के होने ही थे, वो लफाजी में एक दूसरे के साथ जो रिफरिंग टू देयर लाइव्स आउटसाइड ऑफ दोस कैरेक्टर्स, वो हुआ ही होगा, मुझे काफी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनकी कोई नियत नहीं लग रही थी वो सारी शरारतें ना करने की। तो आज तो जाके मुझे भी पता चलेगा कि वो क्या किया है उन्होंने। Hmm. So you're bursting to go there and see how much of it is retained and how much of it is not, how much of it has been Absolutely. changed spontaneously by Yes, the absolutely. I'm always nervous. I'm always nervous. So You you know. said this happens when a certain actor like Salman Khan wants to, do it his way. Does it happen with Shah Rukh as well? Does it happen with Amir as well? See, Shahrukh is absolutely a director's actor. He's a joy to work with. तो मैंने Ashoka was my first film as a dialogue writer. Hmm. That was the only film जहाँ मैं सेट पर था। तो मैंने उनका रवैया देखा हुआ है कि एक बार डायरेक्टर खुश हो गए सीन से, उसके बाद अगर सामने वाला एक्टर को जैसे अगर रीटेक्स करने पड़ रहे हैं, तो वो हर बार एग्जैक्टली वो टेक देंगे जो डायरेक्टर ने अप्रूव किया है, जब तक सामने वाला एक्टर उसे करेक्ट ना कर ले। बट बात ये होती है ना कि जैसे जैसे चक दे जैसी फिल्म जब शिमित अमीन बनाते हैं, तो द चांसेस ऑफ शाहरुख सिंह मैं इसको ऐसे करूं क्या वैसे करूं क्या थोड़ा कम होगा। उनको वेरी क्लियर है कि वो कबीर खान को कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, राइट? और वो कैरेक्टर आ रहा है शिमित अमीन के जहन से, तो वहां पर वो उनके इंटेलिजेंस को थोड़ा होल्ड बैक करेंगे कि ये कैरेक्टर ही इतना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इट्स क्रिएटिंग अ पर्सोना, कि इसमें अगर मैं शाहरुख को दिखाने जाऊंगा तो एक्चुअली वो सफर करेगा। Hmm. तो जब फिल्म पठान जैसी हो, जहां पे द होल पॉइंट इज शाहरुख स्टारडम, very frankly, it is written to enhance that, to utilize that, to celebrate that.
it's very clearly a vehicle for Shah Rukh's stardom and to give him the ultimate device to celebrate Shah Rukh again, because his last few films have not been playing to the Shah Rukh persona, right? वो कुछ नई चीजें ट्राई कर रहे थे and all that. तो वहां पर शाहरुख के कॉन्ट्रीब्यूशन तो आने ही आने हैं, बिकॉज उन्होंने अपने लिए जो स्टारडम क्रिएट की है और उनके ऑडियंस किस चीज से रिएक्ट करते हैं, उसका तो एक जजमेंट उनसे ज्यादा तो किसी को होना थोड़ा मुश्किल ही है. तो इस तरह की फिल्म में उनका कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली ज्यादा होगा कि मैं ये लाइन ऐसे बोल सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये ट्राई करते हैं, एक्शन में ऐसे करते हैं. द कंट्रीब्यूशन विल बी मच मोर. बट अगर वो स्वदेश या चक दे जैसी फिल्म होगी तो आई सस्पेक्ट, मैं उन फिल्मों के साथ इन्वॉल्व नहीं था अनफॉर्चुनेटली. चक दे जैसी फिल्म के साथ तो इन्वॉल्व होना मेरे लिए बहुत प्राइड की बात होती. लेकिन उन फिल्मों में आई सस्पेक्ट के ही इज अ वेरी वेरी प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन आई मेट. तो वहां पे वो बहुत क्लियरली समझ जाते होंगे कि ये डायरेक्टर के विजन के हिसाब से कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हो तो वो फिल्म के लिए बेहतर है. और इस तरह की फिल्म में वो डायरेक्टर के साथ एज शाहरुख ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे कि देखो जब हमें लोगों को ऑ करना है, पूरा 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 मजा, ग्लैमर, लफाजी, रोमांस, म्यूजिक, एक्शन उस सब में है, पूरा स्टारडम बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो वहां पे उनका कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली ज्यादा होता होगा. So he did contribute in Pathan, I guess. Especially the lines which, there are too many lines, I would say. And of course, they are very humorous, taken from his previous films. हाँ, वो किसने कहा, तो वही मुझे लगता है कि कितनी उनमें से मैंने हाँ की हुई या मेरी लिखी हुई है और कितनी उन्होंने इम्प्रोवाइज की हुई है, तो वो मुझे अब पता चलेगा आधे घंटे में. Okay. So देखो, any good writer now, Vicky, once you finished your job, you have to forget it because it's the director's film. आपका काम जिस पॉइंट पे होगा, वो जो राइटर आपको कहता है कि मैंने कुछ और सोचा था या मैंने कहा था वैसे नहीं लिखी गई है, वो अभी तक दुनिया समझा नहीं है, राइट? दिस इज अ डायरेक्टर्स मीडियम एंड दैट इज अ डायरेक्टर्स स्टोरी. यू आर प्लेइंग अ रोल इन इट. अनलेस कहानी आपने लिखी है, अनलेस कोई आपकी स्क्रिप्ट कर रहा है, शुरुआत की विजन अगर आपकी है तो अलग चीज है. तो मैं हमेशा मुझे कभी पूछता भी नहीं हूँ कि तुमने क्या चेंज किया क्या नहीं किया. अब मैं जाके ऑडियंस की तरह देखूंगा. हाँ, कुछ कुछ चीजें बस देखते हुए मुझे याद आएगी कि हाँ ये मैंने लिखा था, अरे नहीं ये तो मैंने कभी लिखा नहीं था, उतना ही. बट उस पॉइंट के बाद अब वो अगर डायरेक्टर को स्क्रीन पे ठीक लगता है तो वो बिल्कुल उसका राइट है. मैंने जिंदगी में किसी डायरेक्टर से पूछा नहीं है कि तुमने वो लाइन क्यों बदली, ये क्यों चेंज किया, मैंने तो ये लिखा था तुमने ऐसा क्यों किया. जिस पॉइंट पे उन्होंने अप्रूव करके स्क्रिप्ट आपसे ले ली, आपका काम हो गया, अब वो उनका प्रोसेस शुरू हो गया. तो फॉर मी इट्स वेरी क्लियरली जिस पॉइंट पे मेरा काम खत्म हुआ, तो मुझे इतना वो नहीं है कि क्या बदला होगा क्या नहीं. क्यूरियोसिटी होती है, कभी कभी हंसी आती है, कभी थोड़ा अरे यार ये डायलॉग तो अब लोग समझेंगे मैंने लिखा है, तो वो वाली बात हो जाती है. बट अदरवाइज जनरली इट्स लाइक व्हाटएवर दे डू इज फाइन, इट्स हिज फिल्म. I won't detain you for too long, Abbas, but just the concluding question. When are you next directing a film? It's been long, yeah. Jhutha Hi Sahi was 2010, if I'm It's been not wrong. long. I've had a little misfortune where it comes to direction, and then when your heart hurts ना, तो फिर दोबारा प्रोसेस शुरू करने की हिम्मत बनाने में वक्त लगता है. अरे बट तो हुआ 2008 में आपने जुटाई सही नहीं बनी, नहीं चली. उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई थी मैंगो. और वहां पर क्या हुआ कि हमने एक बहुत ही बढ़िया कोरियन कॉमेडी की राइट्स लेकर हमने वो सारे न्यू कमर्स के साथ एक फिल्म बनाई थी, और पूरी गोवा मॉनसून में शूट की थी. इट वाज क्वाइट नाइस. वो जस्ट फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था और हमें पता चला कि किसी ने उसी फिल्म का प्लेजराइज वर्जन बना के रिलीज कर दिया है, राइट? तो हुआ क्या कि वो प्रोड्यूसर ने उनको रोकने की कोशिश की, उनको कुछ पैसे मिल गए और वो फिल्म रिलीज हो गई, और वो फिल्म फ्लॉप हो गई जो बिल्कुल अलग तरीके से बनी थी. तो अब प्रोड्यूसर्स का कॉन्फिडेंस हिल गया कि हमने जो भी बनाया हो, इस कहानी को ऑलरेडी लोगों ने जब रिजेक्ट कर दिया तो अब हम इसके ऊपर रिलीज नहीं करते. उनको कोर्ट सेटलमेंट से कुछ पैसे मिल गए. तो व्हेन दैट हैपेंस, जहां पे आपने इतना मेहनत से साल डेढ़ साल लगाकर आपने एक फिल्म बनाई है जो आपको लगेगा चलो जुटाई से नहीं चली थी, ये लोगों को मजा आएगा, और फिर किसी और ने एक प्लेजराइज फिल्म बना के कर दी, आपके डेढ़ साल चले गए, किसी ने देखा ही नहीं है. तो जब ऐसी चीजें होती है ना, आपका दिल थोड़ा भारी हो जाता है. अरे और यार, आपको प्रोसेस 2008 तो आप कहते हो यार ये अच्छा है, देखो यहाँ ये प्रेशर सिद्धार्थ आनंद को लेने दो, मैं अपना काम उनके लिए कर देता हूँ. बट ये जिस लेवल पे डायरेक्शन का प्रेशर है और इतने सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, और एक सिंपल चीज है विकी, आई एम नॉट अ पीपल्स पर्सन.
राइट। तो जब मैं अपना काम करता हूँ, जब मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो या तो मैं अच्छा करता हूँ या तो मैं बुरा करता हूँ, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल मेरे साथ ही है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। बट डायरेक्शन में एक चीज है जिससे कोई एस्केप नहीं है, कि अपना काम ठीक से करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ योर फिल्म, 50 से लेके 500 लोगों तक, उन हर किसी को अपना काम ठीक से करना पड़ेगा ताकि आपका काम ठीक से हो, राइट। हर किसी का काम परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपका काम परफेक्ट हो सकता है। और वो एक अलग माइंडसेट है जो एक्चुअली मुझे बहुत सूट नहीं करता है। आई लाइक टू बी इन कंट्रोल, एंड द लॉस ऑफ कंट्रोल दैट आई फील व्हेन आई हैव टू डिपेंड ऑन सो मेनी पीपल डूइंग देयर जॉब वेल इज ऑल्सो नॉट समथिंग आई एंजॉय टू मच। वेराज जब तक मुझे सिर्फ अपने माइंड में जाके एक दुनिया देखनी है और उस दुनिया को कागज के ऊपर कैप्चर करना है, तो वो आई थिंक मेरी पर्सनालिटी को थोड़ा ज्यादा सूट करता है। तो इसलिए आई कम बैक। और अगर आई डोंट नो कितना आपको याद है, मेरे अर्ली डेज में बहुत क्लियरली कहता था कि हर कोई स्क्रिप्ट राइटिंग को डायरेक्शन के लिए एक शॉर्टकट की तरह यूज करता है। मैं यहाँ स्क्रिप्ट राइटिंग करने आया हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग को डायरेक्शन का जरिया बनाने के लिए नहीं आया हूँ। तो वो शौकिया तब कर लिया था जाने तू, और फिर चल गई तो एक दो और करने, बट द आइडिया वाज ऑलवेज टू बी अ राइटर एंड बी अ बेटर एंड बेटर राइटर, होपफुली, राइट। तो वॉर और पठान के बीच में आपको ग्रोथ दिखना चाहिए ऑफ द डायलॉग, दैट इज वेयर आई एम ग्रोइंग, राइट। एंड दैट इज इंशाल्लाह अगर अगली फिल्म आएगी तो उसमें भी आपको लगना चाहिए कि हाँ नहीं, यहाँ पहले से भी ज्यादा अच्छा काम हुआ है। तो No वो denying ग्रोथ that. और वो जॉब प्रिपरेशन है। No denying that, Abbas. But are you telling me indirectly that you may not direct again? आई एम सेइंग आई एम नॉट फीवरिश अबाउट इट। सो फॉर एग्जांपल, अभी ये जो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो शोज बनते हैं, राइट, वहां पे आपका शो रनर का कॉन्सेप्ट है, और जो अक्सर राइटर और शो रनर सेम होते हैं। तो जैसे फिल्म के अंदर अगर ओवरऑल विजन डायरेक्टर की है, तो ये इन शोज के अंदर ओवरऑल विजन जो है वो शो रनर की होती है। और जी. उसमें मल्टीपल डायरेक्टर होते हैं, लेकिन जो विजन है वो शो रनर की होती है, जो शायद डायरेक्ट ना भी करे। तो Hmm. जे एब्राम्स के बहुत सारे शोज है जहां पे वो लिखते हैं, कंसीव करते हैं, उनकी दुनिया है, और वो डायरेक्टर्स को गाइड करते हैं Hmm. कि हम ये कर रहे हैं, और Right. फिर मल्टीपल डायरेक्टर्स उस पर काम करते हैं, राइट। वो मुझे थोड़ा ज्यादा सूट करता है। आई गेस जस्ट मैं ये कह कि ऑन सेट इज नॉट सच अ, जो कुछ लोगों के लिए लाइफ ब्लड है सेट के ऊपर होना, वो मिस करते हैं, उनके लिए विड्रॉल्स होते हैं बहुत टाइम तक सेट पे ना हो। तो मुझे सेट के साथ वैसा कोई अटैचमेंट फ्रैंकली है नहीं, मुझे कहानियों के साथ वो अटैचमेंट है। तो वो स्पेस मुझे थोड़ा ज्यादा आई थिंक सूट करता है। तो अभी जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो डिज्नी हॉटस्टार और रॉय कपूर फिल्म के साथ एक काफी बड़ा एस्पियोनाज, ये एस्पियोनाज दुनिया का एक शो है, थोड़ा अलग। अब उसमें मेरी विजन है, तो वो बिल्कुल मेरे हिसाब से, और वहां मैं कंट्रीब्यूशन लेता हूं, लेकिन फाइनल डिसीजन मुझे लेना है। एंड वहां पे आई विल गेट अदर डायरेक्टर्स टू डू इट, बट द विजन विल स्टे माइन। सो ये जो राइटर शो रनर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ क्रिएटिव विजन बट विदाउट बीइंग द पर्सन एक्चुअली डूइंग द डे टू डे शूट, वो आई थिंक मेरे टेम्परामेंट को थोड़ा ज्यादा सूट करेगा, इज व्हाट आई एम होपिंग फॉर। सो आई एम डूइंग स्टफ लाइक दैट राइट नाउ। Guys, Abbas is clearly giving us the loud and clear message, I would say, that he's going to be a lot more associated with OTT shows. But I would still insist that you direct a film because your Imran Janila film was absolutely a treat. Trust me, I saw it thrice in 3 consecutive days. Abbas, keep up the good I work. I think that don't is think any of us, you need that to movie go is for this. probably the reason why I find it difficult to direct again, because लोगों को आज भी वो चाहिए, और वो फिल्म अब 15-20 साल हो गए भाई लिखे और किए हुए। तो मैं वो इंसान नहीं हूँ, मुझे अपने कॉलेज के दिन याद नहीं है, और लोग अभी भी चाहते हैं कि मैं यंग लोगों के बारे में कहानी लिखूं, और मैं आजकल के यंग लोगों को जानता नहीं हूँ। तो जब भी कोई चाहेगा कि मैं थोड़ा एक अपने तरह की कहानी करने का कोई मुझे मौका देगा, तो बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करना चाहते। Go for the show, Abbas. Go for the show. 12:30 is your time. And थैंक यू सो check out मच your टॉकिंग टू dialogues. यू आफ्टर सो लॉन्ग। Thank you. Do count the dialogues which have been written and do count the dialogues which have not been written. हाँ, सेंड यू व्हाट्सएप मैसेज के इसमें कितना मेरा है और क्या क्या बदला है। थैंक यू सो मच Thank, विकी। thank you, Abbas. Thank you.